کا نکالیں لوکا نہیں فلپیوں فلپیوں 2 باب 5 آیت سے لے کے 11 آیت تک فلپیوں ہے 229 پیج پہ 229 صفحہ پر فلپیوں 2 باب 5 سے 11 آیت جی پلیز پڑھیں. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک کہ فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. آمین 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 ہاللیلویا. بڑا خوبصورت حوالہ ہم نے پڑھا ہے اور اس حوالے کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. غور کیا کبھی مسیح یسوع کے مزاج پہ؟ ہاں جی ہاں جی تو کیسا مزاج تھا مسیح یسوع کا؟ تھوڑا بھائی ربی شیئر کریں. ہاں پیار سی محبت سی ہاں غصہ بھی تھا کہ جان نہیں؟ دین تک وفادار تھا. غصہ بھی تھا کہ نہیں؟ ہاں غصہ ہے سی. جیسے بچے بچپن سے ہی فرما برداری ہیں اور ان کا جو مزاج اور جو ہم لوگ پڑھتے ہیں کلام میں کہ ماں باپ بھی فرما بردار تھے بچپن سے لے کے اور جب تک تعلیم کا آغاز کیا انہوں نے. جی بھائی گورا جی تصویر بھی دسو کچھ. بے فکر ہو کے دسو بے فکر ہو کے جو دل چاہتا ہے خدا جو تارے سنیا تسی غور نہ جی تو دسو پھر نو پرابلم جو تاری سمجھ آندا ہے جن خداوند دا روح تانوں گائیڈ کردا ہے دسو بلا جھجک ہو کے. ہاں جی سر جی وفاداری ہر ایک نہ خدا نہ بھی وفاداری تے اپنے جڑے سیوکی جڑے انہاں نے وفاداری اپنے تے بھی دسیا نا بھی اپنے یعنی کہ اپنے دوستاں دی بھی جان تک بھی دے دو اتنا ہی محبت کرتے خدا کی صورت پر تھے اور اپنے آپ کو جو ہے نا جیسے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. ہاں جی اور اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کو مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا یہاں تک کہ فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت ہوا ہے. یعنی کہ خدا یسوع مسیح الویت کی ساری معمولی خدا یسوع میں رہ کے سکونت کر خود خدا سی تو پھر بھی انہوں نے اتنا کچھ کیتا ہے انسان. اور غصے کا کہتے ہیں ربی جی غصے بھی تھے غصہ بھی تھا. عذرا کہتی ہیں نہیں غصہ نہیں غصہ تھا کہ نہیں؟ بھائی ہنس رہے ہیں بھائی بھی دسے. کام کیا تھا جب وہ ہیکل میں گیا یاد آ گیا تو بھائی ربی کو یاد تھا آپ کو یاد آ گیا. گناہ پہ غصہ کرتا جی گناہ سے غصہ کرتا ہے. ہاں جی خداوند خدا جو ہے اپنے کلام میں سکھاتا ہے کہ جو باپ اپنے بچوں سے محبت رکھتا ہے ان کی تربیت بھی کرتا ہے اور سوٹی کو بھی باز نہیں رکھتا. تو
तो खुदावंद खुदा क्योंकि इंसानों से प्यार करता है, सॉरी, तो उसने हमें सिखाया, गुस्सा किया लेकिन उसने गुनाह नहीं किया। उसने तरबियत के लिए जो उस वक्त लोग हैकल में कारोबार कर रहे थे, बेसिकली वो सिखाने का मतलब था कि रियाकारी ना हो, है ना, रियाकारी ना हो, कि जो रियलिटी है ना वो सामने आए, कि जो खुदावंद का घर है वो उसने सिखाया कि वहाँ उसकी इबादत हो, परस्तिश हो, कारोबार ना हो। हाँ जी, ये उसका गुस्से करने का, क्योंकि खुदावंद अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो उसकी परस्तिश रूह और सच्चाई से करे। तो ये है उसके गुस्से का मतलब। उसने वैसे गुस्सा नहीं किया कि कान काट दिया पतरस ने, है ना, जब आए ना चढ़ के फौजी खुदावंद यीशु को पकड़ने के लिए, तो उसके शागिर्दों के पास भी असला तो था, उसने तलवार निकाली और अटैक किया और फौजी को उसका कान उड़ा दिया। खुदावंद ने उसे नहीं कहा कि फड़ो फड़ो, बाकियां ने भी फड़ो, कहने के अपनी तलवार को म्यान में काट, कि जो तलवार से काटते हैं ना वो तलवार से ही कटते हैं। तो उसने उनके कान को, हम जो फिल्मों में देखते हैं या कलाम में हम देखते हैं किस तरह लिखा हुआ खुदावंद यीशु मसीह का किरदार। अब इस हवाले में जो पालूस रसूल है वो कलीसिया को लिख रहे हैं। ऑफ कोर्स उसने ये खत कलीसिया को लिखा जो फिलिपियों की कलीसिया थी, और उसने इस बाब में मसीह यीशु को एक नमूने का किरदार सामने बयान किया है, कि उसका किरदार नमूने का किरदार था कि जिसे हर एक मसीह को फॉलो करना चाहिए, है ना, कि उसने कहा कि ऐसा ही मिजाज रखो, यानी आपका जो रवैया है, मिजाज जो आपकी तबीयत है वो खुदावंद यीशु मसीह जैसी होनी चाहिए, है ना। ये उसके लिखने का मतलब था कि कलीसिया में थोड़ी गड़बड़ थी, और आज भी हम देखते हैं कि कलीसिया में मसीह यीशु जैसा हमें किरदार नहीं मिलता, उतनी रूहानियत और पकीजगी नहीं मिलती। हम जब कलीसिया में होते हैं, जब चर्च में होते हैं, तो अपने आप को हम ज़ाहिरी तौर पर दिखाते हैं कि आई एम द होलीएस्ट वन, कि मैं सबसे पाक हूँ, और मेरा ख्याल है कि जितना मैं हूँ उतने ये नहीं है, है ना, यानी अपने आप को दूसरों से अफजल जानना। लेकिन यहाँ कलीसिया में हमें यीशु मसीह के किरदार के बारे में सिखाया गया है कि वो खुदा की सूरत पे तो था, है ना, कि उसके पास पूरी अथॉरिटी थी, लेकिन वो इंसानी सूरत में आ गया, कि उसने अपने आप को, उसमें वो चीज ही नहीं थी कि तकब्बर हो, प्राइड हो, हाँ, कि गुरूर हो कि भी तुसी कीजिए। उसने अपने आप को खाली कर दिया और इंसानी शक्ल इख्तियार की, इंसानों के मुशाबे हो गया, कि जैसे इंसान थे ना वैसे ही बन गया, कि खुदा इंसान बन गया। उसने अपने आप को खाली कर दिया, और यहाँ तक हलीम हो गया कि उसने अपने शागिर्दों के पांव धोए। किसी ने कहा कि भी मैं नहीं, पतरस ने कहा कि भाई उस्ताद जी इंज नहीं हो सकता, ना 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 तुसी मैनू मैं नहीं करना देना तुम, है ना। उन्हें कहा कि जे तू मेरे पैर नहीं ना धोने। खुदावंद यीशु मसीह के हर एक जवाब और हर एक वो दिलों और ख्यालों को जाने। उसने कहा कि भी तू मुझसे ज्यादा हलीम नहीं हो सकता कि तू मैनू पैर ना धो दे। पतरस ने कहा नहीं, जब ये गल है ना तो फिर भाई जी मैं सारे मेरे तो पैर मैनू नवा ही दिओ। उन्हें कहा जेड़ा पा के ना उन्हें होर नवा तहारत की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के पास हर एक बात का जवाब था। फरीसी अभी सोच ही रहे होते तो अपने दिल च सोचते, सब कुछ जानता था, है ना, सब कुछ जानता था, पूरी अथॉरिटी थी। इसके बावजूद उसने अपने आप को खाली कर दिया, हम्बल हो गया। और हमें क्या सिखाया जा रहा है कि ऐसा ही मिजाज रखो
जैसा मसीह यीशु का था, है ना, कि वो खुदा की सूरत पे था, कि हर एक चीज कर सकता था, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने आप को हलीम बना दिया, खुदावंद के ताबे कर दिया। जब इंसानी सूरत में था तो तब वो खुदावंद जो है वो अपने आप को उसी बेस पे ला रहा है। जब इंसानी सूरत में था तो उसने खुदावंद के आगे अपने आप को खाली कर दिया और इंसानी शक्ल में होकर उसने वो सारे काम किए जो एक मुकम्मल इंसान कर सकता है। वो सोता भी था, थकता भी था और ऑफ कोर्स उसे गुस्सा भी आता था, लेकिन खुदाई नेचर में उसने गुनाह नहीं किया। खुदा जो है हम उसे होली बोलते हैं कि पाक है सबसे, इसीलिए तो हम उसे खुदा कहते हैं कि वो है मुकम्मल, परफेक्ट। और खुदावंद यीशु मसीह ने वही नेचर जाहिर की कि ही इज द परफेक्ट गॉड एंड परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, मुकम्मल खुदा और मुकम्मल इंसान। उसने गुनाह किए ही नहीं। ये अगर हम कभी आपको इत्फाक हो तो मुस्लिम जो स्कॉलर हैं वो भी कहते हैं कि वो अजीम नबी थे, सबसे ग्रेटेस्ट प्रॉफिट, क्योंकि मोहम्मद की ज़ात में जो है वो गुनाह लिखा गया है कि भी उसने खता की, लेकिन मसीह के बारे में हमें खता मिलती नहीं। कुरान भी कहता है कि उसने गुनाह नहीं किया। एक तो मुस्लिम जो डॉक्ट्रीन है उसमें ये है कि नबी जो हैं वो सब पाक होते हैं, मासूम होते हैं, कि उनमें गुनाह नहीं होता। लेकिन हम इसी कुरान में ही देखते हैं कि उनसे गुनाह हुआ, मोहम्मद से गुनाह हुआ, लेकिन मसीह की ज़ात जो है उसमें गुनाह नहीं था, उसमें गुनाह नहीं था, क्योंकि उसकी ज़ात हमें ये सिखाती है कि वो खुद खुदा था। अगर हम यूहन्ना की इंजील को देखें तो उसमें हमें पता चलता है कि कलाम मुजस्सम हुआ। शुरू में क्या था? कलाम था, और फिर कलाम जो इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। अब उसी चैप्टर में हम देखते हैं कि कलाम, उसकी 14वीं आयत में, कि कलाम मुजस्सम हुआ, जो कलमा था उसने जिस्म ले लिया, जिस्म इख्तियार कर लिया, एक इंसानी शक्ल में आ गया। और देखें कलाम कैसे इंसानी शक्ल में आया, कि हम मत्ती की इंजील में देखते हैं कि कलमा जो है वो मुजस्सम होता है। कैसे? कि फरिश्ता जो है वो आके पैगाम देता है कि तू हामला होगी, है ना। खुदा का कलाम जो है एंजल गैब्रियल के वसीले इस तक पहुंचता है, मुकद्दसा मरियम तक, और वो किस तरह मुजस्सम हुई, किस तरह हामला हुई, कि खुदा का रूह उस पर नाजिल हुआ और फिर वो मुजस्सम हुई। अनहोना काम कभी इससे पहले ना हुआ ना होगा, खत्म हो गया वो काम। और कलाम जब मुजस्सम हुआ तो उसने मसीह यीशु की सूरत इख्तियार की। उसका हस्बैंड जो था, जो मंगेतर था, वो भी थोड़ा परेशान हुआ कि ये क्या हो गया। यानी जब तक उसे मालूम ना हुआ कि ये किस तरह हुआ है, तो उसके दिल में भी डाउट आया। उसने इतराज़ किया कि ये कैसे हो सकता है, मेरी मंगेतर, और इसका मतलब है वो बदचलन औरत है। उस पर ये ख्याल आया कि भी ये औरत पाकीज़ा औरत नहीं है। कोई भी जो है, मेरा ख्याल है कि इंसान बहुत कम है जो इस तरह एडॉप्ट कर लें कि भी किसी का बच्चा जो है फिर वो आदमी जो है उसको एक्सेप्ट कर ले औरत को, बल्कि गुस्सा करते हैं लोग, और बदचलन औरत गिना जाता है अगर कोई औरत पहले से हामला हो जाए और उसका मंगेतर को पता ही ना हो। जब पता चले तो ऑफ कोर्स उसने भी वही रिस्पांस दिया जो नॉर्मल आदमी रिस्पांस देते हैं। लेकिन जब खुदा के रूह ने उसे आगाही दी, ख्वाब में उसने देखा कि भी जो कुछ ये काम हो रहा है ये खुदा की कुदरत से है, और तू अपनी बीवी को अपने यहाँ लाने से ना डर। जब खुदा ने रहमाई की तो उसने ताबेदारी दिखाई और उस औरत को, मुकद्दसा मरियम को, अपने यहाँ ले आया।
और लिखा है कि उसे तब तक ना जाना जब तक ये सारा हम प्रोसेस मुकम्मल ना हो गया। यानी उससे पहले उसने उसे ऑफ कोर्स जब वो साथ चलते होंगे छुआ तो होगा, लेकिन जो एक मियाँ और बीवी का अज़वाजी रिश्ता होता है उस तक उसने रसाई नहीं की। ये कलाम हमें सिखाता है। लेकिन जब बच्चा हो गया तो बच्चा मसीह यीशु की सूरत में इस दुनिया में आया। तो ये प्रोसेस था जो हमें कलाम मुकद्दस सिखाता है कि वो मुजस्सम हुआ, कि उसने कलाम ने जिस्म ले लिया। खुदा का कलाम यानी जो खुदा था उसने इंसानी शक्ल इख्तियार की। फिलिपियों के खाते में इस तरह हमें पता चलता है कि खुदा ने अपने आप को खाली कर दिया, कि हम्बल हो गया, इंसान बन गया, और जो कुछ वो कर सकता था वो ऑफ कोर्स हम देखते हैं खुदावंद की नेचर में हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं, समझ नहीं आती। एक तरफ तो हम देखते हैं कि वो तूफान ले आया, उसने पूरी दुनिया को ही गर्क कर दिया। ये भी उसकी अथॉरिटी हमें नजर आती है कि खुदा ये कर सकता है, खुदा ये कर सकता है। लेकिन उसने ये फिर नहीं किया कि वो चाहता तो बाद में भी लोगों को जो है इस तरह फना कर देता कि चलो नेस कर दो और फिर से दुनिया आबाद कर दो। जो उस वक्त के पाक तरीन लोग थे उनको सेव कर लेता और फिर जो है लोगों को आबादी बन जाती और नई आबादी बन जाती। लेकिन उसने वो काम दोबारा नहीं किया, बल्कि उसने अपने आप को इंसानी शक्ल में तब्दील करके हमारे मुतशाबे हो गया, हमारे साथ रहा, इंसानों के साथ रहा। ऑफ कोर्स हम लोग तो उस वक्त नहीं थे, लेकिन जो थे ये स्टोरियां उन्होंने बयान की हैं और हमें उनके एक्सपीरियंस से पता चलता है। और ना सिर्फ उनके एक्सपीरियंस से, बल्कि आज जब हम उस पर ईमान रखते हैं तो हमें भी वही चीज़ें मिलती हैं जो हमें लगता है कि उस वक्त के लोगों ने जो लिखी कलाम मुकद्दस में स्टोरियां जो लिखी गई वो आज हमारी ज़िंदगियों में पूरी होती हैं। और लगता है ऐसे है कि ये कलाम मेरे और आपके लिए लिखा गया है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो लगता है कि ये मेरे और आपके लिए लिखा गया। हम जो उस पर ईमान रखते हैं मसीह यीशु पर, ये मुझे और आपको सिखाया जा रहा है कि हम कैसा मिजाज रखें। क्या हमें गुस्सा होना चाहिए? क्या हमें बुग़्ज़ होना चाहिए? क्या हमें बदकारी होनी चाहिए? अगर ये चीज़ें हमारे फ़ायदा की हों तो फिर हमें ये ज़रूर आगाही हो जाए कि हम यही किया करें और बरकत पाएं। लेकिन इन चीज़ों से हमें बरकत नहीं मिल सकती अगर हमारी ज़िंदगी में बदकारी हो, हमारी ज़िंदगी में लालच हो, हमारी ज़िंदगी में तफरका हो, दूसरों के लिए बदगोई हो, तो ये चीज़ें हमें बरकत नहीं बल्कि हलाकत देंगी। कलाम हमें इनके बारे में अगर हम ये करें तो हमें हलाकत सिखाता है। जिस्म के फल और रूह के फल हमें गलतियों की किताब में मिलता है कि जिस्म के फल क्या है और रूह के फल क्या है, और इन दोनों में हमें जब मुआवजा करना पड़े तो हमें फिर बरकत जो है वो रूह के फलों से मिलती है। तो इसलिए पौलुस रसूल जब कलीसिया को देखता है तो उसमें थोड़ा फर्क महसूस करता है और फिर इसलिए उसने सिखाया कि हमें कैसा मिजाज रखना चाहिए। अगर कलीसिया में ये बातें ना होती तो वो कभी भी ये लेटर ना लिखता, ये खत जब दो बाप जो है ये बयान ना होता कि हमें कलीसिया को कैसा मिजाज रखना चाहिए। जब हम उसके पीछे चलने वाले हैं तो हमारी ज़िंदगियों में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर मत्ती की अंजील को हम देखें तो शुरू में जब मसीह यीशु ने 40 दिन रोज़ा रखा तो फिर उसकी आजमाइश हुई, है ना, उसकी आजमाइश हुई। और आजमाइश में क्या कुछ दिखाया गया कि सबसे पहले तो उसे भूख लगी। जब जो बुनियादी 40 दिन रोज़ा रखे इंसान तो क्या होगा, उसकी ख्वाहिश पैसा माल दौलत नहीं होगी, उसकी ख्वाहिश क्या होगी कि वो यार भूख लगी पहले रोटी खा, है ना। अगर इंसान रोज़ा रखे काफ़ी दिनों तक तो उसकी ख्वाहिश क्या होगी, भूख उसकी जो है उसको ज़िंदगी तकवीयत मिले। तो सबसे पहले उसकी आजमाइश क्या हुई, भूख की, कि भी जो खुदा
तू लिखिया है कि भी तू खुदा दा बेटा है, तो इन्हें पत्थरां नूं कहा कि रोटियां बन जान, है ना। तो खुदावंद यीशु ने उसको जवाब, कैसा काबिल जवाब दिया कि भी ये तो जे जिंदगी पानी है ना, तो ये तो नहीं मिलनी कि रोटी खा लो तो फिर जिंदगी पाओगे। जिंदगी तो हर एक उस काम च मिलती है जिहड़ा खुदावंद दे मुंह चों निकलदा है। कलाम, कलाम से जिंदगी मिलती है। और कलाम कौन सा? जो जिंदा खुदा के मुंह से निकलता है ना। तो एक किस्म का शैतान जो है उसने उससे नदामत हुई कि भाई इसने तो मुझे लाजवाब, बाकी जिंदगी तो अगर रोटी से जिंदगी मिलती है, रोटी से जिंदगी नहीं मिलती, ये तकवीयत टेम्परेरी है। लेकिन जो जिंदगी, अगर मैं मर भी जाता हूँ, अगर मैं मर भी जाता हूँ और मैं लालच में आके रोटी तो खा लूंगा, है ना। अगर मैं कह दूं कि भी मुझे अब भूख लगी और शैतान मुझे आजमा रहा है कि रोटी बना, मैं कह देता हूँ कि रोटी खा लूं, तो रोटी खा के तो फिर नाफरमानी होगी कि वो कुवत या जेड़ी शैतान दे आखे मैं इनू कह दिया कि पत्थर जेड़े ने रोटियां बन जाए, और रोटी खा के कुवत तो मिल जाएगी। लेकिन यीशु मसीह जानता था कि इसका पर्पस क्या है ना, कि शैतान को फॉलो करना, कि भी उसको कह दिया कि तुझे तू खुदा दा बेटा है तो क्या है पत्थर में रोटी बन। आजमाइश की, लेकिन खुदावंद आजमाइश पर पूरा उतरा और उसने शैतान पर गलबा हासिल किया। और फिर दूसरी आजमाइश आ गई, क्या थी दूसरी? हाँ, दुनिया की शान और शौकत दिखा, है ना। और तीसरी, और दूसरी गिरा दे ऊपर, हाँ अपने आप को कैसे भी नीचे गिरा खुदा दे हालेलुया, खुदावंद के फरिश्ते जो तेरी हिफाजत करेंगे, है ना। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इन तीनों आजमाइशों पे फतह पाई, बल्कि शैतान पर फतह पाई ना। उसने जो उसकी ख्वाहिश थी भूख की, ये 3 टेम्पटेशन जो है वो कहा जाता है कि भी जब आप खिदमत में है ना, तो इन 3 टेम्पटेशंस पे आपने पूरे उतरना है, काबू पाना है, तो फिर आपकी मिनिस्ट्री जो है वो कामयाब होगी। बहुत सारे लोग जो हैं बड़ा उनको सरफराजी मिल जाती है, हम्बल हो जाते हैं और सरफराजी मिल जाती है, लेकिन देखा गया कि वो नाकाम होते हैं। बहुत कम खुदा के खादिम हैं जो कंटिन्यू खुदा उनके साथ जिंदगी गुजारते रहते हैं। हमें बेनी हिन्स के बारे में भी आपने सुना, बेनी हिन्स का नाम, उसके बारे में भी स्कैंडल निकले। रवि ज़कराया, सुना आपने नाम उनका? बड़ा उनका नाम हुआ है, डिबेटर जी, डिबेटर है अभी हमारा डिबेटर है, डिबेटर, हाँ जी, बड़ा उनका नाम हुआ। लोग बड़े, वो एक किस्म के जो प्रेसिडेंट तक लोगों के साथ उनकी मतलब रसाई थी। और बाद में उनका स्कैंडल हुआ, उनकी डेथ के बाद वो कहा गया कि भी शायद वो सेव नहीं थे, स्कैंडल निकलते। बिली ग्राम ने खत्म हो गया। बिली ग्राम ही वाज वेरी गुड, एंड उसके बाद में निकले कि ये पागल शायद हो गया। बस तोहमत लगाते हैं कोई ना कोई। हाँ जी, हाँ जी, जब लोग जो हैं तोहमत लगाते हैं, और इस तरीके से भी खुदा उनका कलाम पूरा होता है कि इंसान जो है ना मेरे और आपके जैसा वो परफेक्ट नहीं हो सकता, मुकम्मल नहीं हो सकता, ये सिर्फ खुदा की ज़ात है। हमें ये कहा गया है कि हम कामिल बने, लेकिन वी कैन नॉट। हम ईमान में कामिल हो सकते हैं, रासबाजी पा सकते हैं। हमारा ईमान जो है वो हमें रासबाजी दिखाता है और सिखाता है। हम ईमान के वसीला से रासबाज गिने जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर इंसानी शक्ल में रहते हुए वी आर नॉट परफेक्ट पीपल। हम मुकम्मल नहीं हैं, हमारा ईमान मुकम्मल है। क्या ईमान है? कि खुदावंद का बेटा जो है वो दुनिया में आया, उसने जो खिदमत उसके ज़िम्मे लगाई थी उसे पूरा किया, और वो खिदमत क्या थी? खुदा और इंसान का मिलाप। ये हमारा ईमान है कि वो दोबारा आने वाला है, वो मुर्दों में से जी उठा और दोबारा आने वाला है, आसमान पर चढ़ा
और अब दोबारा आने वाला है मुर्दों और जिंदों की अदालत करने के लिए। ये हमारा ईमान है और हम अपने ईमान के वसीला से रासबाज गिने जाते हैं। लेकिन जब हम इंसानी शक्ल में हैं तो हम मुकम्मल इंसान हैं और मुकम्मल खुदा की तरह नहीं हैं। हमारी स्ट्रगल रहती है, लिखा है कि जान देने तक भी वफादार रह। जब तक हम जान देते हैं हमें पता नहीं है, लेकिन हमारी वफादारी इसके लिए गिनी गई है कि जब तक हम जीते हैं हमें वफादार रहना है। लेकिन इसके बावजूद जब हमें मौत भी आने वाली हो, यानी अगर कोई तलवार लेके हमें डराए धमकाए, तब भी हमें उसका इनकार नहीं करना, तब भी हमें उसका इनकार नहीं करना, बल्कि अपने ईमान में कामिल रहना है कि यीशु ही खुदावंद है। ये है हमारा ईमान। मैं जिक्र कर रहा था कि बहुत सारे खुदा के खादम बड़ी सरफराजी खुदा ने उन्हें अता की, लेकिन उनके स्कैंडल निकले, यानी वो भी परफेक्ट इंसान नहीं बने, परफेक्ट इंसान नहीं बने। बड़ी खुदा ने उन्हें सरफराजी बख्शी, लेकिन खुदावंद का नाम जो है, हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि मसीह यीशु जैसा नाम नहीं बख्शा गया आसमान के तले और जमीन के ऊपर, कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, चाहे वो बेनी हिन हो, बिली ग्राम हो, कोई और भी हो, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जैसा नाम नहीं बख्शा गया। बहुत सारे नबी, हम मूसा भी देखते हैं, मोहम्मद तो चले हमें पता ही है वो क्या है, लेकिन और भी दुनिया में जितने भी नाम हैं, कोई यीशु जैसा नाम नहीं है। सिर्फ वाहिद खुदावंद खुदा, हमारा निजात दहिंदा, मेरा और दुनिया का निजात दहिंदा, यीशु मसीह नाज़री। हमें उसके नाम से पता चलता है, यीशु जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हमें उसके नाम से निजात मिलती है, हमें उसके नाम से आगाही मिलती है, शिफा मिलती है, और उसी के नाम से हर घुटना झुकेगा, चाहे वो जमीनियों का, चाहे वो आसमानियों का। मेरे अजीजों, हमें ये कहा गया कि हम वैसा मिजाज रखें, हम्बल, फरोतन, आजमाइशों पे पूरा उतरने वाला। लेकिन हम लोग ऑफ कोर्स इस दुनिया में रहते हुए मुकम्मल इंसान नहीं हैं। हम ईमान के वसीला से रासबाज ठहरते हैं। इब्राहिम जो था वो इंसान था और उसने खुदावंद पर ईमान लाया, वो खुदा पर ईमान लाया, उसके कलाम पर ईमान लाया, और उसे आज हम कहते हैं ईमानदारों का बाप। हम भी ईमान के वसीला से अपने बाप इब्राहिम की तरह रासबाज ठहरते हैं। यह उसके लिए रासबाजी गिना गया। एक है कि वो खुदा पर ईमान लाया, उसके कलाम पर ईमान लाया, और ये उसके लिए रासबाजी गिना गया। तो हम भी ईमान के वसीला से रासबाज ठहरते, अपने कामों के वसीला से नहीं। हमारे काम तो सभी उल्टे ही हैं। हम में लालच भी है, गुस्सा भी है, तफरका भी है, ऐबजोई भी करते हैं, हम ये सब कुछ करते हैं। और इसीलिए पालूस रसूल ने उन लोगों को जो उस वक्त कलीसिया में थे ये तंबीह की कि वैसा ही मिजाज रखो, हम्बल हो, फरोतन हो, है ना, पाकीज़ा हो। और आज के दिन तक ये खुदा का कलाम मेरी और आपकी रहनुमाई करता है कि हम भी मसीह यीशु जैसा मिजाज रखें। देखिए, हम लोग ऑफ कोर्स खताकार हैं, लेकिन अपने ईमान के वसीला से हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। जितनों ने उसे कबूल किया, हम मसीह यीशु को कबूल करते हैं और खुदा हमें अपने बच्चे होने का हक बख्शता है। हम ईमान के वसीला से रासबाज ठहरते हैं, अपने कामों के वसीला से नहीं।
तो मेरे अजीजों, खुदावन खुदा हमें बरकत देता है। हम जैसे भी हों उस पर ईमान रखने के वसीला से खुदा हमारे दिलों में खुशी, तसल्ली और इत्मीनान भरता है और हमें इस काबिल बनाता है कि हम उसकी परस्तिश रूह और सच्चाई से करते हैं। 2 हों 4 हों जितने भी हों, हम जहाँ उसकी इबादत करते हैं वो हमारे दरमियान होता है। हम ऑफ कोर्स थोड़े ही होते हैं अक्सर, लेकिन खुदा हमारे दिलों में खुशी, तसल्ली और इत्मीनान रहता है। अपने कलाम के वसीला से, उसकी हम्द व सना करने के वसीला से वो हमें बरकत बख्शता है। तो उसके कलाम को हम दिलों में रखें, याद रखें, तो खुदा इसी तरह हमारे लिए अपने आसमान के दरीचों को खोलता है और हमें अपनी बरकत अता फरमाता है। वैसा ही मिजाज रखे जैसा मसीह यीशु का था, रहम दिल, ना लालची, ना इस दुनिया की शोहरत को पाने वाला। ऑफ कोर्स हम लोग स्ट्रगल करते हैं, अचीव करने की कोशिश करते हैं कि सारा जितनी भी हमारी स्ट्रगल बढ़ती रहती है, उतना ही हम अपने आप को दुखों में ढेलते हैं, दुखों में डालते हैं, परेशानियों में डालते हैं, और वो जो स्ट्रगल है वो सारी रायगा जाती है। देखा है कि वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है ना। ज़बूर 127 में देखें तो हमारी स्ट्रगल सारी रायगा। लिखा है कि जब तक खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अब्स है। जब तक खुदा ही शहर की हिफाजत ना करे तो जागने वालों का, पहरादारों का जागना अब्स है। कि पहरेदार जाग रहे, दलदला आ गया, ओ पहरेदार ही ना बच जाती तो भाई फिर जाती। हाँ, और हमारा सुबह तड़के उठना और रात लेट हो, कितने काम करने दे पाए ना दे हैं भाई। कहते हमारा रात देर तक जागना फजूल है जब तक खुदा ने बरकत नहीं देनी, जब तक उसने दिल में कुछ तसल्ली और इत्मीनान नहीं भरना, तब तक हमारी स्ट्रगल सुबह जल्दी उठ जाना और रात को देर तक काम करते रहना, गुथलियों में सुराख हो जाना, इधर से डालने उधर से निकल जाने। जब तक उसकी रहमत हम पर नहीं होगी, उसकी शफकत हम पर नहीं होगी, हमारा ईमान उस पर नहीं होगा, तो ये सारी काविशें, स्ट्रगल्स रायगा हैं। मैं थोड़ी देर पहले अपने दिल में सोच रहा था कि मैं जाऊं भाई पॉल के पास और उसके साथ शेयर करूं कि यार अपनी जिंदगी खुदा उनको दे। उसका केस जो है वो ऑफ कोर्स इस नौयत का है कि जिस तरह उसने खिदमत की और उन्होंने कोशिश की और चर्च बनाने की कोशिश की, और चर्च वाले जो अगेंस्ट लोग थे उन्होंने वो बंद करवाया चर्च, और ये जगह भी उनकी ऑक्युपाइड होगी, लोगों ने कब्जा कर लिया। तो अगर वाकई ये सच्चाई होती तो मेरा ख्याल है जिस तरह अभी वो अपने आप को खुदावन के हवाले करेगा तो खुदावन उस पर जरूर रहम करेगा। क्लेम जो है आपका कुछ और हो और आपके काम जो हैं वो कुछ और जाहिर करें, तो वो आपके कहने में और करने में तज़ाद होगा। हमें वैसा ही मिजाज रखना है जैसा मसीह यीशु का था, कि वो खुदा था, उसने वो सारे काम किए जो खुदा कर सकता था। अंधे को शिफा दी, जन्म के अंधे को शिफा दी। लोग हैरान हो गए, भाई जी ये काम तो सिर्फ खुदा ही कर सकता है। लोगों ने ये अल्फाज हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि लोग हैरान हो के कह रहे हो यार है काम तो सिर्फ खुदा ही कर सकता है। तो इसका मतलब है कि ये जो किया है काम ये खुदा ही है, ये जो काम करने वाला है ये खुदा ही है। कि जन्म के अंधे को आंखें दे दी, कोड़ियों को शिफा दे दी, पाक कर दिया, तो ये कौन कर सकता था? खुदा कर सकता। और हमें क्या कहा गया है कि वैसे ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था।
آج جب خدا کے کلام کے اگر ہم نگاہ کریں تو ہمیں ریمائنڈر ملتا ہے کہ اس نے کہا کہ تم اس سے بھی بڑے کام کرو گے اگر ایمان رکھو، تو جو کچھ تم میرے نام سے میرے باپ سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارے مزاج میں ابھی تک شاید اتنی پاکیزگی نہیں آئی، ہمارا ایمان بھی ڈاماڈول ہی رہتا ہے، ہم ویسا مزاج رکھتے ہی نہیں، ہماری سوچ فرق رہتی ہے، ہماری سوچ تو ہر وقت یہی ہے کہ میرے پاس کتنا آ جائے۔ سچائی کی بات یہی ہے، ہم لوگ سٹرگل میں رہتے ہیں۔ جب تک ہماری زندگی میں شکر گزاری نہیں ہوگی، ہماری ضرورتیں بڑھتی رہیں گی اور ہماری انکم کم ہوتی رہے گی، یعنی ہم اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالتے رہیں گے۔ تو خداوند یسوع مسیح کے مزاج میں تو ہمیں کبھی پریشانی ملی ہی نہیں۔ دیکھا کبھی کلام ہمیں کہیں بھی نہیں دکھاتا کہ وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے خداوند سے منت کی کہ اگر یہ پیالہ ٹل جائے تب بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور وہ اس نے جب سرنڈر کر دیا تو ہمیں صاف پتہ چلتا ہے، لکھا ہوا ہے کہ اس کا پسینہ جو ہے نا وہ خون بن کے ٹپکا۔ اتنی اپنے آپ میں وہ پائی قوت کے علاوہ، یعنی اتنا جذبہ اس کے اندر آیا کہ اس کا پسینہ جو ہے، اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ ویسا تھا یا نہیں، لیکن جو لکھا گیا ہم کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ سچائی کا کلام ہے۔ کبھی ایسا مجھے دیکھا نہیں میں نے کہ پسینہ انسان کا وہ خون بن کے نکلے، یا میں شاید اس کی اتنی گہرائی کو سمجھتا نہیں کہ پسینہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے خون بن کے انسان کے جسم سے، لیکن لکھا گیا ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ ڈاکٹرین ہوگی، کچھ نہ کچھ اس کی بیک گراؤنڈ ہوگی۔ اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں شاید کوئی ڈاکٹر بتا سکے، لیکن اتنی تکلیف میں تھے خداوند یسوع مسیح، انہوں نے پھر بھی اپنی مرضی نہیں کی کہ میں نہیں کرنا، اس نے کہا کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری۔ مرضی اپنی ظاہر کی، ایک انسان نے خداوند کے سامنے اپنی مرضی ظاہر کی کہ ہو سکے کہ یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ ہم تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ خداوند تو ایسا کر، خداوند تو ایسا کر، اپنی مرضی کہتے ہیں کہ تو کر دے بھائی، ہم اس کی مرضی پر نہیں چلنے کے لیے تیار ہوتے۔ تو مزاج ہمیں کس طرح کا کہا گیا ہے؟ یسوع مسیح کا۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانیں اور جہاں کمی ہے اس پر غور کریں، دعا کریں، اور خدا ہمیں تقویت بخشتا ہے کہ ہم مسیح یسوع کے مزاج جیسا بنتے ہوئے آگے بڑھتے چلیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے اور توفیق بخشے کہ ہم ویسا ہی مزاج رکھیں جیسا ہمارے زندہ اور ابدی خدا یسوع مسیح کا ہے۔ ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور میں درخواست کروں گا اپنے بھائی شوکت سے کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی کریں۔ خدائے عظیم رب الفاظ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں آج کا دن دیا، اور پیارے خداوند پورے دن کی تمام نعمتوں و برکات کے لیے تیرے شکر گزار ہیں، اس زندگی کے لیے شکر گزار ہیں جو تو نے ہمیں اپنا کلام سننے کے لیے دی ہے پیارے خداوند، تاکہ ہم تیرے کلام کے مطابق پیارے خداوند طاقت زندگی اور زندگی کو بدل سکیں، اور پیارے خداوند اس کلام سے پیارے خداوند اپنی زندگی چلا سکیں۔ پیارے خداوند تو ہمیں فضل بخش کہ ہم تیرے کلام کے مطابق پیارے خداوند اور تیرے